Good morning students, myself Avik Roy from the mathematicsicon channel, your mathematics teacher. So in this lecture I am discussing about a new chapter, very new chapter for class 11th. Okay, so this chapter name is straight line chapter, very important chapter, and this chapter is the base, the foundation of the other chapters actually. Okay, and the geometrical part is being started from the straight line chapter. Okay, the straight line and this coordinate geometry, 3D-dimensional geometry, and then this conic section, these are the geometrical chapters. Okay, so this is the foundation, the basic structure, basic chapter of this geometrical part. Okay, so this straight line concept, I think you know very well what type of geometrical figure is called the straight lines. Okay, straight lines, यहाँ पर तो डायरेक्ट ही दिया गया है स्ट्रेट लाइंस, तो यहाँ पर स्ट्रेट मतलब सीधा होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं. ठीक है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए, ये तो हम लोग जानते हैं पहले से ही. ठीक है, x1 y1 x2 y2. ठीक है, 2 पॉइंट तो यहाँ पर चाहिए. ठीक है, दैट मीन्स ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन by using 2 points at a time. That means x1 y1, this is the first point, second point is x2 y2. ये तो हम लोग जानते हैं. ओके, फिर स्ट्रेट लाइन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बहुत सारा है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्चुअली स्ट्रेट लाइंस, दैट मीन्स डिफरेंट, नॉट टाइप, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस आर देयर. ओके, दैट मीन्स ए पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइंस कैन बी represented in various forms. Okay, different forms will be discussed, and the different pattern of the straight lines will be discussed in this chapter. That means I think which you have not get in your last class in the junior classes actually. So in this lecture just we are going to discuss different types of the straight lines and the different solutions and the different things regarding the straight line chapter as well. Okay, at first you need to know what is the basic structure of the straight line. Just remember this thing: whenever a linear equations will be given, and this formation is the straight line formation. Okay, so that means a straight line formation is the linear equation. The general form, general form of straight line is ax plus by plus c equals to 0. It is the general form of a straight line. Okay, that means a straight line equation can be represented by this formation. Actually, ax plus by plus c equals to 0, where a, b, c are the constants and x or y will be the variables. As you all know this thing, and the power will be 1 and 1. That means if a variable have the power 1, that means this is the straight line equation. Okay, then this is actually the starting of the straight line chapter. Okay, then after that the next concept is, okay, fair. That means point number 2 लिखो, the equation of a line joining 2 points x1, y1. ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट तो चाहिए. ठीक है, अब 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2. ठीक है, इज क्या होता है? y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1. ठीक है, x और y तो यहां पर x एक्सिस और y एक्सिस कंपोनेंट्स है, एंड x1 y1 x2 y2 ये पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है. दैट मींस 2 पॉइंट अगर दिया जाए आपको क्वेश्चन में, 2 पॉइंट्स गिवन है. ठीक है, आपको निकालना है. नाउ यू नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. दैट मींस व्हाट? पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो दिया जाएगा यहां पर x1 y1 x2 y2. जस्ट आपको x1 y1 x2 y2 के जगह में वैल्यू रिप्लेस कर देना है. x और y तो फिक्स्ड रहेगा, यहाँ पर x और y को चेंज नहीं करना है. वैल्यूज यहाँ पर x1 y1 x2 y2 का वैल्यूज आपको पुट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये है बेसिक फॉर्मूला. फिर थर्ड दो, हेडिंग दो, द
द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब ये स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये कॉन्सेप्ट क्या है? स्लोप ये क्या होता है? ठीक है, स्लोप होता है जैसे सपोज ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, सपोज ये एक लाइन है, ये लाइन जो है इधर एक एंगल करता है, इधर भी एक एंगल करता है। ये जो एंगल है वो निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ करता है। देखो निगेटिव एक्स एक्सिस है ना, डायरेक्शन क्या है? इस तरफ क्या होता है? निगेटिव एक्स एक्सिस होता है, तो निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन होता है। बट ये जो होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है। तो इसको अगर मैं थीटा ले लूं, थीटा, ठीक है, तो ये थीटा अगर मैं लूं तो ये जो थीटा का जो टेंजेंट वैल्यू होगा, टेंजेंट वैल्यू, इसको बोला जाता है स्लोप ऑफ द लाइन। जस्ट देख लो क्या होता है। इफ ए लाइन, ऐसे लिख लो, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस उस तरफ, then the tangent value of this angle is called slope of the line, ठीक है। तो that means tangent value, इसको थोड़ा मार्क करके रखो, टेंजेंट, ठीक है। तो यहां पर स्लोप इज डिनोटेड बाय कैसे डिनोट किया जाता है? एम से डिनोट किया जाता है, एम, स्मॉल एम, ओके। दैट इज स्मॉल एम इक्वल्स टू, थीटा एंगल बनाता है, उसका टेंजेंट मतलब क्या होता है? टेन थीटा। दैट मीन्स कोई भी एक स्ट्रेट लाइन अगर एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, उस पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ सपोज 45 डिग्री एंगल बनाता है, सपोज, तो यहां पर स्लोप क्या होगा? m इक्वल्स टू 10, थीटा की जगह में क्या यूज करोगे? 45 डिग्री यूज करोगे। दैट मीन्स m इक्वल्स टू 10 45 दैट इज 1। दैट मीन्स इस लाइन का स्लोप क्या निकलेगा? 1 निकलेगा, ठीक है। दैट मीन्स किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए आपको क्या निकालना है? क्या पता होना चाहिए आपको एंगल पता होना चाहिए। किसके साथ एंगल? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल आपको पता होना चाहिए, ओके। अच्छा, फिर और देखिए, लिखो स्लोप को हम लोग दूसरा एक प्रोसेस है, अनदर प्रोसेस है, उसमें भी हम लोग स्लोप को डिनोट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं स्लोप को, ठीक है। लिखो और द स्लोप ऑफ द लाइन। अच्छा, यहां पर तो देखो स्लोप निकालने का, इफ यू वांट टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, ऑफ ए पर्टिकुलर लाइन, टू प्रोसेस आर देयर। फर्स्ट प्रोसेस इज if the angle will be given, then you can use this formula m equals to tan theta. Just you have to replace the value of theta here. You will get the slope of this line. When the angle will not be given, but the joining points are given, that means देखो ये तो जब एंगल दिया जाता है तब आप m equals to tan theta करके तो स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। बट और the slope of line joining the points x1 y1 and x2 y2 is m equals to tan theta equals to y2 minus y1 by x2 minus x1, ये होता है। दैट मीन्स स्लोप को हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। कैसे होता है देख लो, थोड़ा देख लो कैसे होगा इसका प्रूफ। देख लो कैसे यहां पर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 आया है, प्रूफ, ओके। द पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2, दैट मीन्स ये एक सपोज ये एक लाइन, ये x एक्सिस y एक्सिस है
अब सपोज ये जो पॉइंट है ये x1, y1 है, ये जो पॉइंट है ये x2, y2 है, ठीक है। ये है ज्वाइनिंग लाइन, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं, ये एंगल जितना होगा उसका टेंजेंट वैल्यू होगा स्लोप, है क्या नहीं। अच्छा, सो यहां पर एक काम करते हैं, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो एंगल है इसको थीटा ले लेते हैं। अब एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल करके एक लाइन इधर ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एंगल अगर थीटा हो तो ये एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑन द सेम साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑन द सेम साइड एक ही होता है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो एक ट्रांसवर्सल अगर रहे तो एक ही साइड का जो एंगल्स होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो दोनों सेम होगा। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, दैट मींस ये अगर 60 डिग्री है ये भी 60 होगा, ये 45 डिग्री ये भी 45, ये 30 होने से ये भी 30 होगा, ठीक है। सो यहां पर देखो ये जो लेंथ है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक काम करो पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ऊपर लिख लो, ये x1, y1, x1, y1, ये x2, y2। ये लेंथ कितना होता है, आई थिंक y1। ये लेंथ कितना होता है, आई थिंक y2, क्योंकि पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, देखो y1 कोऑर्डिनेट है तो देखते हैं ये लेंथ तो y1 होगा। अब ये लेंथ तो y2 है क्योंकि पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहां पर y2 है। ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना होगा x2, ये लेंथ कितना होगा x1, है कि नहीं, ठीक है। सो दैट मींस ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा x2 माइनस x1 है ना। देखो तो ये पूरा यहां से इसको अगर माइनस करो तो ये निकल जाता है ना, तो ये पूरा कितना होता है x2, देखो ये x2 है ना, इससे अगर मैं ये माइनस करूं दैट मींस x1 माइनस करो, कौन सा निकलेगा, ये निकलेगा। इसका लेंथ क्या है x2 माइनस x1, तो ये अगर x2 माइनस x1 है तो ऑब्वियसली ये भी x2 माइनस x1 ही होगा, ठीक है। सिमिलरली देखो ये पूरा कितना है y2 है, अब इसमें से सिर्फ ये लेंथ कितना है y1 है ना, देखो तो y1 है, तो ये लेंथ कितना होगा, ये जो लेंथ है ये ऊपर का पार्ट टोटल y2 है, ठीक है। ये y1 है, ये क्या होगा y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1, देखो तो, ठीक है। अब अगर एक नाम दे दू a, ये b, इसको c दे दो, फॉर ट्राइंगल A B C, tan theta इक्वल्स टू, ये ट्राइंगल, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ठीक है। तो आप 10 में भी शायद ये देखे होंगे, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट बाय बेस, हाइट बाय बेस होता है tan थीटा का फॉर्मूला। तो हाइट बाय बेस, यहां पर हाइट कितना है, ये वाला है ना हाइट, देखो तो AC बाय बेस कितना होता है BC, तो AC मतलब क्या होता है, देखो तो AC मतलब क्या है y2 माइनस y1, बाय BC मतलब क्या होता है x2 माइनस x1 है। सो दैट मीन्स m इक्वल्स टू tan थीटा, तो मतलब क्या m है ना, m tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, आ रहा है। सो दैट मीन्स स्लोप दो प्रोसेस से निकाल सकते हो आप लोग, एक m इक्वल्स टू tan थीटा, अगर एंगल पता हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर एंगल गिवन नहीं है बट द पॉइंट्स आर गिवन, बोथ एंड पॉइंट्स आर गिवन, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है। दो प्रोसेस है, तो ये गया। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आओ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हेडिंग दो एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, नेक्स्ट हेडिंग एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन दिया जाएगा, आपको एंगल निकालना है दोनों लाइनों के बीच, ठीक है। तो लिखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है। इफ टू लाइन्स
slopes m1 एंड m2, मतलब दो लाइन दिया गया है और दोनों लाइन का स्लोप्स m1 और m2 अगर दिया जाए क्वेश्चन में, देन द एंगल tan theta equals to m2 minus m1, tan theta equals to m2 minus m1 by 1 plus m1 m2, ठीक है, प्लस माइनस m2 minus m1 by 1 plus m1 m2, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये फॉर्मूला, ये प्रूफ कैसे आता है वो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अब आओ प्रूफ में आओ। सपोज देखो ये एक फिगर है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन और ये एक स्ट्रेट लाइन। इस लाइन का स्लोप क्या है m1 और इस लाइन का स्लोप m2, ठीक है। ये एंगल थीटा और यही एंगल हम लोग को निकालना है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ θ1 एंगल बनाता है और ये जो सेकंड लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ θ2 एंगल बनाता है। अब बोलोगे सर यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही आपने एंगल क्यों लिया? क्योंकि वी हैव टू डील विद द स्लोप। ओके, सो अकॉर्डिंग द डेफिनेशन ऑफ द स्लोप द एंगल शुड बी इंक्लाइंड with the positive x-axis as well. Okay, so here you can see that we have taken two angles, θ1 and θ2, right? which are made by the two different lines with the positive x-axis. Negative x-axis के साथ हम लोगों ने एंगल यहां पर नहीं लिया। So ये θ1 और ये θ2, एक काम करो, इसका नाम दे दो AB, ये CD लाइन। Here the lines AB and CD having slopes m1 equals to स्लोप, एंगल तो θ1 है, फर्स्ट लाइन जो है AB का, तो अगर इसका नाम m1 स्लोप है, m1 अगर स्लोप होता है, यहां पर ब्रैकेट में लिख कर रखो स्लोप, ठीक है, m2 है स्लोप। अगर m1 इसका स्लोप होता है तो m1 कैसे निकालेंगे हम लोग? θ1 tan θ1, देखो तो, एंड m2 इक्वल्स टू क्या होगा? सेकंड लाइन एंगल क्या है? θ2, उसका टेंजेंट का वैल्यू tan θ2 होगा इसका क्या? स्लोप। दैट मींस फर्स्ट लाइन का स्लोप है m1, सेकंड लाइन का स्लोप है m2, ठीक है। अच्छा, हम लोग को निकालना है, यहां पर थीटा का वैल्यू निकालना है कि नहीं? दैट मींस ये प्रूफ करना है, दैट मींस ये चीज प्रूफ करना है हम लोग को। वी नो दैट अच्छा, एक ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी होता है, वो होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दैट मींस ट्राइंगल एक होता है, ट्राइंगल एक होगा, आपको दिया जाएगा। ट्राइंगल का कोई भी बाहर का एंगल, बाहर का एक्सटीरियर एंगल, बाहर का एंगल निकालना है आपको। कैसे? देखो, ये देखो, ये एक ट्राइंगल है, ये जो है एक क्या होता है? एक ट्राइंगल होता है कि नहीं? ये होता है आपका बाहर का एंगल, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, तो बाहर का कौन सा है? θ2। तो बाहर का एंगल किसके साथ इक्वल होगा? बाहर का जो एंगल है उसका ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में जो दो इंटीरियर एंगल्स रहेगा, दैट मींस यहां पर ऑपोजिट साइड में कितना इंटीरियर एंगल्स है? दो, ये एक, ये एक, ये थीटा है, ये θ1 है। दैट मींस हम लोग लिख सकते हैं बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी θ2 इक्वल्स टू थीटा प्लस θ1। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, दैट मींस θ2 का आंसर किसके साथ इक्वल होगा? ये दोनों का सम जितना होगा इसका, इस एंगल का वैल्यू वही होगा, ठीक है। दैट मींस θ2 इक्वल्स टू थीटा प्लस θ1, ये हम लोग लिख सकते हैं यहां से। सो थीटा इक्वल्स टू θ2 माइनस θ1 है कि नहीं? अब बोथ साइड अगर मैं tan इंक्लूड कर लूं, यहां पर tan θ2 माइनस θ1, तो ये हो गया, देखो tan a माइनस b का एक फॉर्मूला बन गया। अब ये ट्रिग्नोमेट्री तो हुआ नहीं,
एक फॉर्मूला, ये जो है फॉर्मूला लिख के रखो साइड में, tan a माइनस बी फॉर्मूला लिख के रखो है। ये हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे उसको, tan a माइनस बी, ठीक है। ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, लिख के रखो tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। सो tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1, देखो फॉर्मूला लिख रहे हैं, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1। तो tan थीटा 2 हम लोगों ने क्या लिया था, m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है। दैट मींस tan थीटा का वैल्यू क्या निकला, m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। अब ये जो आंसर है इसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ऐसा तो कोई बात नहीं, क्या हर टाइम आपको पॉजिटिव ही मिलेगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस साइन दिया गया है। जो भी आपको एक्सेप्ट करना है वो आप एक्सेप्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। सो द एंगल ऐसे लिख लो, सो tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस दिस, ये लिख लो प्लस माइनस दिस, क्योंकि m1 और m2 का वैल्यू तो पर्टिकुलर वैल्यू तो हम लोग नहीं जानते ना, तो यहाँ पर प्लस माइनस हो भी सकता है कि नहीं, तो प्लस माइनस देके लिख दो आप लोग, ओके। फिर इस प्रॉपर्टी से दो सब प्रॉपर्टीज निकलता है, वो भी लिख लो। ये तो दोनों लाइन के बीच एंगल है, ठीक है, तो इससे दो सब प्रॉपर्टी निकलता है। सब प्रॉपर्टी यहां पर क्या है, लिख लो, if the two angles are parallel, if यहां पर two lines are parallel, अच्छा पैरेलल का डेफिनेशन बोलो तो कब दो लाइन पैरेलल होता है, दैट मींस ये एक्सिस, ये दो लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल कब होता है, जब दोनों लाइंस बेस के साथ सेम एंगल बनाएगा तभी तो पैरेलल होगा। दैट मींस ये अगर थीटा हो ये भी थीटा होगा, ये अगर थीटा 1 हो ये भी थीटा 1 होगा। दैट मींस दोनों का एंगल बेस के साथ सेम होना चाहिए। दैट मींस ये जो इसका टेंजेंट का वैल्यू tan थीटा 1 भी, ये भी सेम होगा। अगर दोनों एंगल का टेंजेंट का वैल्यू अगर सेम हो गया, दैट मींस क्या, अगर बेस के साथ एंगल्स सेम हो गया तो दैट मींस टेंजेंट का वैल्यूज भी सेम होगा ऑब्वियसली। ये अगर 30 डिग्री हो तो ये भी 30 डिग्री होगा, तो दोनों का tan 30 वैल्यू भी सेम ही होगा। अगर टेंजेंट का वैल्यू अगर सेम हो गया तो ऑब्वियसली क्या सेम होगा, स्लोप्स भी सेम होगा, ठीक है। सो टू लाइन्स आर पैरेलल, देन m1 इक्वल्स टू m2, ये लिख के रखो, ठीक है। m1 इक्वल्स टू m2, दोनों लाइंस का स्लोप्स भी सेम होगा। फिर पॉइंट नंबर 2, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन, अब दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं। tan 90 कितना होता है, इंफिनिटी होता है। तो यहां पर एक काम करते हैं, tan 90 इक्वल्स टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, है कि नहीं। तो tan 90 मतलब तो इंफिनिटी होता है, इधर m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। अब इंफिनिटी लेकर डील करें क्या, नहीं कर सकते, बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लो, 1 बाई इंफिनिटी और ये देखो 1 प्लस m1 m2 बाई m2 माइनस m1, बोथ साइड हम लोगों ने रेसिप्रोकल ले लिया। इसका आंसर क्या है, 0 इक्वल्स टू 1 प्लस m1 m2, और ये नीचे का पार्ट डायगोनली मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। दैट मींस क्या निकल रहा है, m1 m2 इक्वल्स टू -1। दैट मींस दो लाइन परपेंडिकुलर होगा कब, जब दोनों स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा, तब परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एकदम बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस,
फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। अब क्वेश्चन लिखो, थ्योरी यहां तक ही, फिर हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द एक्चुअली दिस डिविजन, द थ्योरी एंड द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। ओके, ये थ्योरी हम लोगों ने लिखा है। अब इस टाइप का थ्योरी के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन, find the angle between the lines, find the angle between the lines joining the points, joining the points क्या क्या है, 0,0, 2,3, 0,0, 2,3 and 2, -2, 3,5, 2, -2, 3,5। ठीक है, तो दैट मीन्स ये दो पॉइंट मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ये दो पॉइंट मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो मैंने बोला था कि अगर यहां पर पॉइंट्स दिया जाए, हाउ कैन यू फाइंड द स्लोप हियर, जस्ट यू नीड टू यूज द फॉर्मूला y2 - y1 by x2 - x1। ठीक है, तो यहां पर हियर द स्लोप, here the slope of the line joining the points क्या क्या, 0,0, 2,3 is m equals to, m1 नाम दे दो। ठीक है, पहला लाइन है ना इसलिए m1। ये x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 by x2 - x1। So y2 - y1 means 3 - 0 by 2 - 0. That is m1 equals to 3/2. Similarly, second line का भी एक स्लोप निकलेगा। The slope of the line joining the points 2, -2 and 3,5 is m2 equals to y2 - y1, that is 5 minus of -2, देखो ये 5 -2, 5 minus y2 - y1, x2 - x1, that means 3 -2, 3 -2, that means 7/1। so m2 equals to क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। सो m1 का वैल्यू भी पता है, m2 का वैल्यू भी पता है। अब आपको एंगल निकालना है कि नहीं। ठीक है, सो द एंगल बिटवीन दिस लाइन्स, ऐसे लिख लो। सो एंगल tan theta equals to m2 - m1 by 1 plus m1 m2, प्लस माइनस तो है कि नहीं। सो यहाँ पर प्लस माइनस m2 - m1 मतलब क्या होगा, m2 7 minus m1 मतलब 3/2 by 1 plus m1 m2, 1 plus m1 3/2 into 7, that means 14 minus 3/2 और इधर 1 plus 21/2 है कि नहीं। तो यहां पर होगा 11/2 और क्या होगा 23/2। 20 एलसीएम कर रहा हूं, 2 कैंसिल, दैट मीन्स 11/23। वो भी सामने प्लस माइनस है, हर जगह तो प्लस माइनस रहेगा। सो tan थीटा इक्वल्स टू ये आ रहा है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, tan अगर उधर चला जाए tan इनवर्स प्लस माइनस 11/23। तो ये होता है एंगल, दो लाइनों के बीच एंगल निकलता है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स प्लस माइनस 11/23। ठीक है, सो ये है दैट मीन्स अगर यहां पर पॉइंट्स दिया जाए आपको, आप पॉइंट्स को यूज करके कैसे यहां से आप
दो लाइनों के बीच एंगल निकलता है वो आप यहां पर देखते हैं। ठीक है, सो देखो, इफ a equals to 6,4 and b equals to 2,12. Second question, if a equals to 6,4 and b equals to 2,12. Okay, b equals to 2,12. a equals to 6,4, b 2,12. If a 6,4 and b 2,12, b 2 points, b 2 points, अब 2 पॉइंट दिया गया, दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन तो मिलेगा आपको। ठीक है, स्लोप भी निकाल सकते हो। b 2 points, then the slope of another line which is perpendicular to it. That means यहां पर ये दो पॉइंट्स दिया गया है A और B। ठीक है, तो लिखो गिवन A 6,4 and B 2,12. So slope of AB equals to, AB लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाता है? देखो, m1 equals to y2 minus y1 by x2 minus x1. ये है y2 minus y1, 12 minus 4, 2 minus 6. That means 8 by minus 4, there is minus 2. So m1 निकलता है यहां पर minus 2, है कि नहीं? अब है एक लाइन है, ठीक है, अनदर लाइन जो कि परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AB के ऊपर। नाउ अनदर लाइन परपेंडिकुलर टू AB। सो अगर दो लाइन एक दूसरे के साथ अगर परपेंडिकुलर हो तो प्रॉपर्टी क्या बनता है? m1 m2 इक्वल्स टू -1। अब इसमें से m1 का वैल्यू तो -2 आपको पता ही है, m2 किसका है? वो अनदर लाइन का स्लोप जो है वो m2 है, मैंने लिया है। सो -2 इंटू m2 को -1, दैट मीन्स m2 इक्वल्स टू हाफ। सो दैट मीन्स जो अनदर लाइन है जो परपेंडिकुलर है किसके साथ? AB के साथ, इसका स्लोप क्या होगा? हाफ। ठीक है, हो गया। फिर ऐसे ही पैरेलल का भी होगा, पैरेलल होने से भी ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए क्वाड्रिलेटरल हैज द वर्टिसेस एट द पॉइंट्स। ए क्वाड्रिलेटरल हैज द वर्टिसेस एट द पॉइंट्स। ए क्वाड्रिलेटरल हैज द वर्टिसेस एट द पॉइंट्स। Quadrilateral has the vertices at the points. A quadrilateral has the vertices at the points. Quadrilateral है, चार वर्टिसेस तो रहेगा ही। -4,2, 2,6, 8,5, -4,2, 2,6, 8,5, and the last point is 9, -7. 9, -7. Okay. Show that the midpoints of the sides. Show that the midpoints. So that the midpoints of the sides of this quadrilateral are the vertices of parallelogram. Are the vertices of parallelogram. ठीक है, ये पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है,
तो यहां पर बोला गया कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, सपोज ले लेते हैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, 4 वर्टिसेस दिया हुआ है ए बी सी डी। ए मतलब यहां पर होगा -4,2, बी मतलब यहां पर होगा 2,6, सी यहां पर 8,5 और 9,-7, ठीक है। अब बोला गया है ये चारों साइड्स का जो मिड पॉइंट्स होता है, अब मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, जानते हो ना ये मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, क्लास 10 में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वहां पर तो मिड पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट शायद तो पता होना चाहिए। ये 4 मिड पॉइंट्स होगा 4 साइड का, तो चारों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक फिगर निकलता है कि नहीं। दैट मीन्स आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो फिगर है इसका नाम दे दो ई एफ जी एच, ठीक है। तो यहां पर एक काम करो, पहले तो मुझे ई एफ जी एच का कोऑर्डिनेट्स जो है वो निकाल लेते हैं मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके। एक स्टार देके लिख लो, स्टार मतलब नोट, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन joining x1 y1 and x2 y2 is, फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसे निकाला जाता है। ये अगर 2 पॉइंट है x1 y1 x2 y2, तो x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल्स टू इसका मिलेगा y1 प्लस y2 बाई 2, मतलब इसका मिलेगा e, ठीक है। तो एक एक करके अब निकालेंगे। सो गिवन, ऐसे सोनी पहले लिखो, गिवन a -4,2 b 2,6 c क्या होगा 8,5 एंड d क्या होगा 9,-7। ओके, हियर मिड पॉइंट e इक्वल्स टू, निकाल लेते हैं e मतलब क्या होगा, देखो -4 प्लस 2 बाई 2 और 2 प्लस 6 बाई 2, टू प्लस सिक्स बाई टू, दैट मीन्स यहां पर ये -2, दैट मीन्स -1 और इधर 4, ये होता है e। अब h का निकालना है, ठीक है। तो यहां पर f क्या होगा, f मतलब ये 2 पॉइंट a और d, तो x1 प्लस x2 दैट मीन्स -4 प्लस 9 बाई 2 2 minus 7 बाई 2 दैट मीन्स 5 बाई 2 और इधर -5 बाई 2, ये होता है f। g पॉइंट क्या होगा, g मतलब ये 9 प्लस 8 बाई 2, 9 प्लस 8 बाई 2 एंड -7 प्लस 5 बाई 2, that means 17 by 2 and -2 by 2, that is -1। ये होता है G पॉइंट। तो एक एक करके that means 1 by 1 we are finding the mid points for individual, that means individual sides, that means 4 sides, a quadrilateral have the 4 sides and just we are finding the mid points for each and every sides। Okay, according to the questions, all the midpoints, if you join all the midpoints, then a new figure will be constructed and this figure will be the parallelogram that should be proved। Okay, so EFGH, H मतलब यहाँ पर क्या होगा, देखो 2 प्लस 8 बाई 2 और इधर 6 प्लस 5 बाई 2, दैट मीन्स यहाँ पर 10 बाई 2, दैट इज 5, 8 प्लस 2 10, 10 बाई 2 क्या होता है 5, 11 बाई 2। देखो
यहां पर सब पॉइंट्स मिल गया, ठीक है। ई पॉइंट मिल गया, ई पॉइंट क्या मिला था, ई पॉइंट भी निकाल लो, बता दिया मैंने। ई पॉइंट क्या था, -4 + 2/2 और इधर 2 + 6/2, दैट मीन्स -1, 4। बस, तो दैट मीन्स यहां पर ई एफ जी एच सब पॉइंट्स यहां पर मिल गया है। अब पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अब पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए ऑपोजिट साइड्स, पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या होता है, अगर यहां पर टू ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल अगर हो तब वो पैरेललोग्राम बनता है। तो उसके लिए मुझे ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है वो मुझे दिखाना है, ठीक है। अब दोनों साइड पैरेलल कब होता है, मैंने बोला था, देखो दोनों साइड, दो साइड है, कोई भी दो साइड है वो दोनों साइड पैरेलल है, इसका मतलब क्या होता है, स्लोप्स इक्वल होना चाहिए, ठीक है। स्लोप्स, तो यहां पर देखो इस लाइन का स्लोप इस लाइन के साथ अगर स्लोप के साथ इक्वल हो गया तो दैट मींस ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये प्रूफ हो जाएगा। तो इससे पहले ईएफ लाइन का स्लोप्स मुझे निकालना पड़ेगा, जीएच लाइन का भी स्लोप मुझे निकालना पड़ेगा। तो यहां पर देखो स्लोप ऑफ ईएफ, लो ईएफ, ई पॉइंट भी पता है, एफ पॉइंट भी पता है, स्लोप्स निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1, y2 - y1, that means 4 minus of -5/2 by x2 - x1, ठीक है। सो 4 + 5/2 और इधर -2 - 5/2, सो दैट मीन्स यहां पर क्या होगा 13/2, इधर -7/2, 2 to कैंसल, दैट मीन्स 13/-7। तो ये निकला किसका स्लोप, स्लोप ऑफ ईएफ, स्लोप ऑफ ईएफ का निकल गया। अब स्लोप ऑफ ईएफ का निकल गया, अब इसका निकाल लेते हैं। ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो तभी तो पैरेललोग्राम बनता है, हम लोग को प्रूफ करना है कि ई एफ जी एच एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम होने के लिए ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होना चाहिए। तो ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल कब होगा, जब उन लोगों का स्लोप्स इक्वल होगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर ऑपोजिट साइड्स का स्लोप्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ईएफ का निकल गया ये। अब जीएच का निकाल के देखो, स्लोप ऑफ जीएच निकालो तो देखो तो कितना होता है, स्लोप ऑफ जीएच निकाल के देखो, कहां निकाले स्लोप ऑफ जीएच। अच्छा, ये फिगर आप लोग ड्रॉ कर लेंगे, हम लोग यहां पर साइड में कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। एच एमजी, ठीक है। अब स्लोप ऑफ जीएच, स्लोप ऑफ जीएच, अच्छा जीएच मतलब ये, जीएच मतलब ये दो पॉइंट, y2 - y1 दैट इज 11/2 माइनस ऑफ -1 और ये 5 - 17/2, दैट मीन्स 13/2 और इधर 10 -7/2, 2 to कैंसल, 17/-7। बस देखो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ जीएच 13/7 निकला, स्लोप ऑफ ईएफ 13/7 निकला। तो दैट मीन्स दोनों का ही सेम निकला। सो यहां पर ईएफ पैरेलल टू जीएच नहीं है क्या, पैरेलल टू जीएच नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, है कि नहीं। सो सिमिलरली अब हम लोग निकालेंगे क्या क्या, ईएफ और जीएच तो निकल गया, ठीक है। ईएफ और जीएच निकल गया, बाकी जो दो पेयर है दोनों साइड में वो हम लोग निकालेंगे अभी। बाकी दो पेयर मतलब कौन सा होगा, ये था ई एफ जी एच, है कि नहीं। अब ई एच, ई एफ जी एच, ई एच और एफ जी, ई एच एंड एफ जी,
ये निकालो, ये दोनों का निकालना है। तो यहाँ पर ये चीज जो है ये बॉक्स करके रखो, ठीक है। अब नेक्स्ट में जाओ, स्लोप ऑफ EH, स्लोप ऑफ EH निकालो। नाउ स्लोप ऑफ EH निकालो। स्लोप ऑफ EH क्या होगा? EH मतलब ये 4 माइनस y2 माइनस y1, 4 माइनस 11/2 और इधर माइनस 10, दैट मीन्स 8 माइनस 11/2 और इधर माइनस 6, दैट मीन्स माइनस 3/2 इंटू माइनस 1/6, माइनस माइनस कैंसल, इट मीन्स 1/4, 1/4 किसका मिला? EH का, EH। अब GF का निकालो, GF देखो तो कितना होता है GF का? GF मतलब ये, ठीक है। GF y2 माइनस y1 by x2 माइनस x1, that means minus this of this by x2 माइनस x1 by 2 minus 17/2, ठीक है, 17/2। तो that means minus 5/2 minus minus plus 1 by 5 minus 17/2, that means minus 3 by minus 7/2। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर ये 17 है। सो दैट मीन्स GF इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस 5+2/2 और इधर होगा माइनस 12/2, ठीक है। सो यहां पर ये आएगा 6, दैट मीन्स माइनस 3/2 इंटू माइनस 1/6, यहां पर भी सेम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/4। तो यहां पर भी देखो स्लोप ऑफ EF 1/4 आ रहा है, स्लोप ऑफ GF, सो EH पैरेलल टू GF। तो देख रहे हैं यहां पर ऑपोजिट साइड्स जो है पैरेलल निकल रहा है। तो एक लास्ट स्टेटमेंट लिखो, हियर वी कैन सी द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हियर वी कैन सी द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो EFGH is parallel, ठीक है। प्रूफ, यही तो आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो these are all basic level questions of the straight line chapter. Just we are starting this chapter, and in this lecture just my target was to provide the basic knowledge about the straight line chapter, and that's why just I had given this basic concepts and this slope of the line and this various concept regarding the angle between the two lines and this different types of questions, how can you solve the slope related questions, okay. So in the next lecture just we will solve the different questions, some upper level questions from the straight line chapter, and the various concepts, different types of concepts are there in straight line chapter, very important chapter and very much complicated also, okay. So if you have the clear concept regarding the straight line, and very big chapter it is, okay. So if you have the clear concept regarding this straight line chapter, then in calculus part, in everywhere just you will see that straight line concept used to be used, okay. So I think just try hard to get more and more knowledge, to gather the more and more knowledge from my lecture and from my solvings as well, and so I think it will be useful for the better future. So मिलते हैं next video में. If you like my videos, if you like my lectures, then subscribe, like and share my channel, okay. Bye. Jai Hind.